ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਫਲਾਨਾ ਧੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਧੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਧੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਨ ਮੱਤਾ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਚੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਫਲਸਫਾ, ਕਨਸੈਪਟ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ
ਜਾਂ इन्हां दी क्रैडिबिलिटी खत्म हो गई तो फिर मुल्क जिहड़ा है वो कमज़ोर हो जाता है। उवें ही संस्थावां जिहड़ियां वो कौमां नूं मजबूत बनाउंदियां। जदों संस्थावां खुद मजबूत हुंदियां ते जदों संस्थावां कमज़ोर हुंदियां ते उदों फिर कौमां भी कमज़ोर हो जांदियां। और साडा विरोधी जिहड़ा है वो बाखूबी इन्हां गल्लां नूं जाणदा है। उन्होंने पता है कि जे इस धर्म नूं ढाह लाउणी है, जे इस धर्म नूं मनण वालियां नूं ढाह लाउणी है, तो फिर इस धर्म दीयां जिहड़ियां चूड़ां है, चूड़ां किहड़ियां ने? चूड़ां संस्थावां ने। तो इस धर्म दीयां जिहड़ियां चूड़ां ने जिन्हां दे द्वारा इन्हां दा सिद्धांत जिहड़ा है वो प्रज्वलित हुंदा है, इन्हां दी परंपरा प्रज्वलित हुंदी है, उन्हां संस्थावां नूं जिहड़ा है वो कमज़ोर किया जाए। तो जे बाहरों सीधा कमज़ोर करनगे असीं गल फड़ लांगे, और फड़दे भी रहे हैं। जिन्हें साड़ियां संस्थावां नूं कमज़ोर करन दा सामने आके यतन किया है, असीं उन्हां दे गल 'च हत्थ पाउंदे रहे हैं। पर हुण साडे विरोधी ने की कीता है कि असीं हत्थ ही ना पा सकीए। इस करके साडे विचों ही जिहड़ा वो पैदा कर दिते साड़ियां संस्थावां नूं कमज़ोर करना, ताकि सानूं पता ही ना लगे कि कौन कर रहा। असीं एक दूजे नूं दोष देई जाइए, आ फलाना कर रहा, वो कहंदे नहीं आ फलाना कर रहा, वो कहंदे नहीं आ जिहड़ा नुक्कर 'च बैठा ये कर रहा, वो कहंदे नहीं वो नुक्कर 'च बैठा वो कर रहा। असीं एक दूजे ते दोष देई जांदे, एक दूसरे ते दोष दे रहे भी कोई होर नहीं कर रहा संस्थावां नूं कमज़ोर, सिख कर रहे ने, आ फलाना धड़ा कर रहा है, फलाना धड़ा कर रहा है, फलाना धड़ा कर रहा है। एक बेइतफाकी जी जिहड़ी है साडी कौम दे अंदर अज पैदा हो गई है, और बेइतफाकी भी जिहड़ी है साडी कौम दा नुकसान कर रही है। रतन सिंह भंगू ने एक बड़े सोहणे शब्द लिखे ने। कहंदे जदों भाई तारू सिंह जी की शहादत तो बाद पंथ दे उत्ते बिखड़ा समा आ गया ना, सिखां दे सिरां दे मुੱਲ जिहड़े आ वो पैणे शुरू हो गए। शाह नवाज खान की हुकूमत सी लाहौर के अंदर, जिहड़ा जकरिया खान का मुंडा सी, पुत्र सी, और उन्हें कहा कि सिखां दा खुरा खोज लभण वाले नूं इनाम दिते जाणगे, सिखां नूं कतल करन वाले नूं इनाम दिते जाणगे। सिखां दे सिरां दे जदों मुੱਲ पैण लगे तो फिर खालसा पंथ ने उस वेले रल मिल के अपना एक बड़ा इकट्ठ किया। वो लिखता है कि उस इकट्ठ दे विच जिहड़े दाने सी वो कहन लगे भी आपां राज प्राप्त करना है, और यकीनन करांगे क्योंकि साडे गुरु ने कहा कि मेरा सिख राज करूगा। गुरु के वचन कदे झूठे नहीं हो सकते, और आपां राज करना है, राज करांगे, पर राज लई साज होने बहुत जरूरी है। जिवें जे राग सुनना है तो साज तो चाहिए है ना, हुण साजां तो बिना राग थोड़ी निकलदा। वो कहंदे जे राज लेना है ना तो फिर सानू कहंदे राज दे साज जिहड़े है ये पहला इकट्ठे करने पैणगे। हुण राज दे साज किहड़े है? वो कहंदे सब तो पहला जिहड़ा राज दा साज है ना वो है ताकत। वो कहंदे ये कित्थों मिलू? कहंदे ये निकलू एकता चों, इतफाक चों, एकता चों निकलू, इतफाक चों निकलू। मुकदी गल की घुम फिरा के सारे जिहड़े आ इस गल ते केंद्रित हो गए भी जे असीं राज लैणा तो सानू शक्ति इकट्ठी करनी पऊगी, तो शक्ति हासिल करनी पऊगी, तो ये जिहड़ी शक्ति है ये एके चों निकलूगी, ये इतफाक चों निकलूगी। इस करके आपां एका नहीं खत्म होण देना। हुकूमत चाहे सिरे दा टिल ला ले, लखां जोर ला ले, असीं एका नहीं खत्म होण देना। क्योंकि जे हुकूमत साडा एका भंग करन दे विच कामयाब होगी ना तो फिर साडे कोले शक्ति नहीं होनी, ते जे शक्ति ना होई तो असीं राज नहीं लै सकांगे।
बस सारा जोर हुण इस गल ते देना है भी ये स्टेट जिहड़ी है साडे अंदर बेइतफाकी ना पैदा कर दे, साडे अंदर एकता ना पैदा होण दे, एकता नूं ढाह ना लावे। एकता रखनी आपां सारिआं ने। ते किवें रोकांगे एड्डी वड्डी स्टेट की साजिश नूं? मेरी भी गल हुई कि किवें रोकांगे स्टेट की साजिश नूं? जे स्टेट फुट पाउणा चाहुंदी है किवें बचांगे? जे स्टेट बेइतफाकी पैदा करनी चाहुंदी है किवें बचांगे? वो कहंदे चिंता करन दी लोड़ नहीं है, कहंदे तुसीं गुरु ते भरोसा रखो, गुरु ते विश्वास रखो। जदों साडा सारिआं दा विश्वास गुरु ते होएगा ना, जदों साडा सारिआं दा भरोसा गुरु ते होएगा और साडी टेक जिहड़ी है अकाल दे तखत दे उत्ते होएगी, ये स्टेट कामयाब नहीं हो सकेगी। असीं एक होवांगे, साडे अंदर शक्ति आएगी और असीं राज भाग दे मालक बनांगे और वो राज भाग दे मालक बन गए। इतिहास गवाह है, वो राज भाग दे मालक बन गए। फिर जांदा क्यों रहा? जदों एकता खत्म हो गई, बेइतफाकी आ गई, उदों राज जांदा रहा। महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद बेइतफाकी ने मारिया सन, असीं विश्वास ही नहीं किया किसी ते। वो कहंदा वो अंग्रेज़ों का पिट्ठू है, वो कहंदा आ अंग्रेज़ों का पिट्ठू है, वो कहंदा आ अंग्रेज़ों का पिट्ठू है, वो कहंदा आ अंग्रेज़ों का पिट्ठू है। ते जिहड़े अंग्रेज़ों के पिट्ठू सी उन्हां नूं असीं पहचान ही नहीं सके। एक दूजे ते दोष दे गए, आ भी अंग्रेज़ों का पिट्ठू, आ भी अंग्रेज़ों का पिट्ठू, आ भी अंग्रेज़ों का पिट्ठू। ये चीज़ां जिहड़ियां ने ना, ये बड़े सोचण समझण की जरूरत है। अज जिहड़ी चीज़ की सानूं जरूरत है वो इहो ही है सब तो वड्डी, कि असी अपनियां संस्थावां बचाईए, असी अपनियां संस्थावां मजबूत करिए, गुरु ते भरोसा रखिए, गुरु ते विश्वास रखिए। दमदमी टकसाल जिसने बड़े विद्वान पैदा किए और जिस दे विद्वानां ने दुनिया भर दे विच सिੱਖੀ का प्रचार किया है और नास्तिकता दीयां जड़ां कट्टियां ने। अज वो नास्तिकता दीयां जिहड़ियां जड़ां ने ना, वो फिर किते ना किते फुटदियां तुरियां जांदियां ने, फुटदियां तुरियां जांदियां ने। आ मेरे तो पहला सरदार अमरजीत सिंह बोल के गए सन, मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। दुख इस गल का नहीं कि नास्तिकता दीयां जिहड़ियां जड़ां ने वो फिर हरियां भरियां हो रही ने। दुख इस गल का है कि वो हरियां भरियां इस करके हो रही ने क्योंकि साडे स्वरूप दे विच बैठे लोग नास्तिकता दीयां जड़ां नूं पानी दे रहे। दुख इस गल का है। नास्तिक लोग नास्तिकता दीयां जड़ां नूं पानी देण, सानूं कोई दुख नहीं है। साडे भेख दे विच बैठे जिहड़े लोग है वो नास्तिकता दीयां जड़ां नूं पानी दे रहे हैं और नास्तिकता दीयां जड़ां जिहड़ियां फुटदियां जांदियां ने, ये वड्डी चिंता का विषय है। मैं सारियां सिख संस्थावां नूं अपील करांगा कि अपनी मजबूती वाले पासे वधिए, मजबूत होइए और सारा ध्यान जिहड़ा है वो प्रचार प्रसार के उत्ते केंद्रित करिए। अज डोर टू डोर जिहड़ा है वो जाण की जरूरत है सानूं उन्हां कोल जिन्हां दा विश्वास डगमगा रहा है, ताकि उन्हां दे विश्वास नूं मजबूत कर सकीए। विश्वास किहदे ते? गुरु दे उत्ते। भरोसा किहदे दे उत्ते? गुरु दे उत्ते। भाई सुखदेव सिंह जी ने कहा है कि पिंडां दे विच लोग चाहुंदे ने कि महापुरख आउण, विद्वान आउण, कथावाचक आउण। सरबजीत सिंह जी ढोटिया ने भी कहा, पिंडां दे विच समागम रखे ने, सुबह शाम समागम हुंदे ने। तखत श्री दमदमा साहब वालों संपूर्णता दिवस नूं समर्पित प्यास है लोगों के अंदर, प्यास है लोगों के अंदर। पर जे असीं जाके उन्हां नूं गुरु दा ये महान बाणी रूपी जिहड़ा जल जिहड़ा है वो पिया के प्यास ना बुझावांगे तो मजबूर होए फिर गंदियां नालियां दा पानी पीणगे। फिर असीं रौला पाउणे ये गंदियां नालियां दा पानी पी जांदे आ, गंदियां नालियां दा पानी पी जांदे। वो की करन? वो प्यासे ने, वो की करन? उन्हां नूं प्यास लगी है। इस करके बाहर निकलीए, गुरबाणी रूपी अमृत जल दे नाल उन्हां दी प्यास बुझाउण दा यतन करिए। जो असी गुरबाणी रूपी जल नाल उन्हां दी प्यास बुझावांगे,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਏ ਨੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।